Hello student, our new topic is like fraction. So what do you mean by like fraction? Like fractions are those fractions which have same denominator. Same denominator. Okay. So let us see here. Fraction with same denominator are called like fractions. Okay. Examples 1 by 7, 2 by 7, 3 by 7, 6 by 7. You see here all have the denominator is 7. All have denominator is 7 but numerator is different. So whenever you see a denominator is same, that means this is a like fraction. Now unlike fraction. So fraction with different denominator are called unlike fraction. Fraction with different denominator are called unlike fraction. Here is some example: 1 by 3, 2 by 4, 7 by 8, 9 by 5, and so on like that. So whenever you see fraction with different number of fractions with different denominator, that means these are the examples of unlike fractions. So this is a very key important point because these 2 points helps you in finding, in comparing the fractions, and in addition and in subtraction also. Okay, so our next topic is comparing fractions. Comparing fractions, basically here is one concept here that like fraction and unlike. देखो इसमें क्या है कि एक कंसेप्ट चलता है like fraction का एंड अनलाइक फ्रैक्शंस का. ठीक है, अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो कंपैरिजन करने के लिए हमें पहले उन्हें लाइक बनाना पड़ेगा, एंड अगर लाइक फ्रैक्शंस है तो कंपैरिजन थोड़ा सा ईजियर हो जाता है. सो और फर्स्ट इज कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करेंगे? So first of all, we read something about it. Fraction with same denominator but different numerator. Fraction with same denominator but different numerator, that is like fraction. Fraction which has greater numerator, that whole fraction is bigger than the other. See here some examples. I take an example like here. See 7 by 8 and 3 by 8. Here this is a like fraction because denominator is same. You see denominator is same. Okay, but according to these comparing of like fraction, इसमें क्या है, जो like fraction है, अगर डिनोमिनेटर ऑब्वियस लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर तो सेम होगा. ठीक है, तो हम उसका न्यूमरेटर देखेंगे. अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो होल फ्रैक्शन बड़ा है. अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो होल फ्रैक्शंस बड़ा है. अगर न्यूमरेटर छोटा है तो फ्रैक्शन छोटा है. सी हियर सम मोर एग्जांपल. These are the comparison of like fraction. Here denominator is same but here numerator different, but according to our statement, fraction which has greater numerator, that whole fraction is bigger than the other. So here is 4, here is 2, which one is greater? This one is greater, this one is greater. Now here again denominator is same but numerator 3 is greater than 2, so the whole fraction 3 by 5 is greater than 2 by 5. Okay, so let us see some more example. Okay, 1 by 2 and 3 by 2, which one is greater? 3 by 2 is greater because numerator is bigger than the numerator is bigger. Okay, because denominator is same. Okay, next is like unlike fraction with the same numerator. How we calculate this type of fractions? Unlike fraction with the same numerator, fraction with same numerator but different denominator. Same numerator but different denominator. Fraction which has a smaller denominator, that whole fraction is bigger than the other. See here, अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है तो जो डिनोमिनेटर में जो छोटी वैल्यू होगा वो होल फ्रैक्शन बड़ा होगा. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हमने 1 बाय 3 एंड 1 बाय 5, दोनों में न्यूमरेटर कैसे सेम है, 1 बाय 1 1 है, बट डिनोमिनेटर कैसा है, एक 3 और एक 5 है. तो ये जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो होल फ्रैक्शन बड़ा होगा, इसलिए 1 बाय 3 इज ग्रेटर देन 1 बाय 5 हो गया. हियर 3 बाय 7 एंड 3 बाय 4, यहाँ पे भी न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है. तो डिनोमिनेटर में देखेंगे जो छोटा होगा वो बड़ा होगा होल फ्रैक्शन. तो 4 स्मॉलर देन 7 है तो दिस होल फ्रैक्शन इज ग्रेटर. नाउ सी हियर 2 by 3 and 2 by 5, again 2 by 3 is greater because 3 is smaller than 5.
तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, अगर आप लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे तो हम न्यूमरेटर को देखेंगे, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। अगर आप अनलाइक फ्रैक्शन देखेंगे अगर और उसमें भी न्यूमरेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो छोटी वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ओके, अगर सी देखो इसको एक बार और देखते हैं हम। जैसे 1/3 हमने लिया है कि हमारे पास जो एग्जांपल था 1/3 एंड 1/5 का, तो 1/3 हमने बोला कि 1/5 से बड़ा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर हम इसको फ्रैक्शन में ना लेते हुए पॉइंट्स में वैल्यू लिखें तो 1/3 जो होती है 0.333 अप्रॉक्स होती है एंड 1/5 होता है 0.2। नाउ यू सी दैट विच वन इज ग्रेटर, 0.3 इज ग्रेटर देन 0.2। ओके, सो न्यूमरेटर सेम है तो जो छोटी वैल्यू है डिनोमिनेटर में वो पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब एक और कंडीशन है, इफ बोथ न्यूमरेटर and denominator is different, then first we make like fraction by multiplication or division, then we decide which is greater or smaller। देखो अगर ये तो केस हो गया हमारा कि डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर सेम है, तो हम यहाँ पे उस कंडीशन को फॉलो करते हैं, इस रूल्स को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, अगर लाइक फ्रैक्शन है मतलब न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू है तो पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा, अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर में जो छोटी वैल्यू होगी वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। लेकिन ऐसा कंडीशन ना हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 3/4 एंड अनदर इज 4/5। ओके, सो दीज आर टू एग्जांपल हियर। ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, दोनों ही डिफरेंट है यहाँ पर दोनों के। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पहले लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, इन दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। अब लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 लेंगे, 4 एंड 5। सो कैसे लेते हैं एलसीएम, आपको आता है 4 एंड 5 का, 2 2 ज़ा 5 सेम, 2 1 ज़ा 5 सेम इट इज, देन 5 1 ज़ा 5। सो देयरफॉर एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज 20। तो 20 एलसीएम आ गया ये। तो अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हमें लाइक फ्रैक्शंस बनाना है पहले। तो हमने पहले जो लिया फ्रैक्शन वो 3/4 लिया, इसको लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 3/4 इंटू 5 करा हमने इंटू 5। सो मिला हमें, देखो एलसीएम क्यों निकाला था, हमने एलसीएम इसलिए निकाला था कि हम जब लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कैसा होता है, सेम होता है। तो ये बन गया 15/20 एंड 4/5। इसको भी हम लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, किसी न किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो क्या है 4 से, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करने पर ही डिनोमिनेटर कैसा होगा 20। अब डिनोमिनेटर दोनों का कैसा हो गया 20/20, यहाँ पर भी 20 यहाँ पर 20, दैट मीन्स अब ये कैसा बन गया, एक लाइक फ्रैक्शन बन गया। अब यहाँ पर कंपैरिजन करना इजी हो गया, बिकॉज एक हमारे पास फ्रैक्शन है 15/20 एंड अनदर फ्रैक्शन क्या है 16/20। नाउ से विच वन इज ग्रेटर, ऑब्वियस है दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर देखेंगे, एंड न्यूमरेटर में 16 इज ग्रेटर देन 15, सो the whole fraction is greater. So we can say that 3/4 is less than 4/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एडिशन भी करना हो, सपोज दैट इसी को हमें ऐड करना होता, यहाँ पे कंपैरिजन ना कर देते हुए हमें एडिशन दे देते, तो हम क्या करते, अब ऐसे तो हम डायरेक्टली ऐड कर नहीं सकते, गलत हो जाएगा। तो फिर से हमें क्या करना पड़ता, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ता, एलसीएम निकालते, देन इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाते, देन एडिशन करते हैं। तो अब इनको एडिशन करते हैं अगर अपन, तो देखो क्या करते हैं, इसका 3/4 इसको हमने कहीं में कन्वर्ट कर दिया 15/20 में, एंड अब यहाँ पर भी देखो ये 4/5 को भी हमने 16/20 में कन्वर्ट कर दिया। डिनोमीटर सेम है तो हम कॉमन डिनोमीटर ले लेंगे एंड दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, तो आंसर आ गया 31/20। अगर सेम क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन के लिए होता 4/5 माइनस 3/4, तो वही हमें फिर से क्या करना पड़ता, एलसीएम लेके लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं, लाइक फ्रैक्शन आता है हमारा 16/20 माइनस 15/20, इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 20 कॉमन है तो हमने कॉमन नहीं लिख दिया, 16 माइनस 15
आंसर आ गया 1/20, ये हमारा हो गया आंसर। तो एडिशन करना हो, कंपैरिजन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो भी ऑपरेशन उसने बोला है एडिशन करने का, सब्सट्रैक्ट करने का या कंपेयर करने का, वो हम करेंगे। Okay, let us take another example, 5/6 and 13/15. We have to compare both, which one is greater, which one is smaller. So what we have to first take LCM. Okay, take LCM of denominator. Denominator क्या है, 6 and 15. See here how to take LCM, 6 and 15. Now first divide by 2, 3s are 15, then 3s are 1s are 5s are, then 5 1s are 5. So LCM क्या आ गया हमारा, 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 30. नाउ अब ये LCM 30 आ गया, इसका मतलब क्या है, हमें डिनोमिनेटर क्या करना है, 30 बनाना है। डिनोमिनेटर को क्या करना है, कन्वर्ट करना है 30 में। जैसे 5/6 है तो इस 6 को 30 में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक नंबर से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, बिकॉज हमने पढ़ा था प्रीवियस एक्सरसाइज में, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, हमेशा सेम नंबर ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना, लाइक फ्रैक्शन बनाना है। क्या करना है हमें, लाइक फ्रैक्शन बनाना। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो सी 5/6 किसका मल्टीप्लाई करें हम 6 में कि 30 बन जाए, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 6 कितना होता है, 30 होता है। ये बन गया 25/30। फिर एक और फ्रैक्शन है हमारे पास 13/15। अब यहाँ पर भी हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है, तो 13 का एंड 15 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 को कि 30 बन जाए, 2 से करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 26/30। 26/30 बन गया। अब यहाँ से देखो एक वैल्यू है हमारे पास 25/30, एक वैल्यू है 26/30। अब हमारे लिए इजी हो जाएगा लाइक फ्रैक्शंस बनाना। तो एक तो है हमारे पास 25/30, अनदर है 26/30। ओके, 25/30 एंड 26/30, विच वन इज ग्रेटर। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में 26 बड़ा है, तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 13/15 इज ग्रेटर देन 5/6। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपैरिजन कैसे करना है। लाइक फ्रैक्शन हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम न्यूमरेटर देख के बता देंगे विच वन इज ग्रेटर। अगर लाइक न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तब भी हम बता देंगे विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर। बट हमारे पास ऐसे फ्रैक्शंस है, ठीक है, जिसमें ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है, तो फिर वहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे, एलसीएम लेंगे। जो भी एलसीएम आएगा हम डिनोमिनेटर को उस एलसीएम में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई करके, देन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों फ्रैक्शंस लाइक बन जाते हैं, देन वी स्टार्ट कंपेयरिंग। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर 1, राइट शेडेड पोर्शन एज अ फ्रैक्शन। इसको हमें फ्रैक्शंस में लिखना। अरेंज देम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द करेक्ट साइन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू बिटवीन द फ्रैक्शंस। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इनको फ्रैक्शंस में लिखना है। तो ये देखो यहाँ पर टोटल 8 इसके सेक्टर्स है, ठीक है, जिसमें से 3 सेक्टर्स जो है वो शेडेड है। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 3/8, 3/8, यहाँ पे 6/8, and here 4/8, and here 1/8. See here, these are the fractions, these are the fractions. Now arrange in ascending order. So 3/8, 6/8, 4/8 and 1/8. Here denominator is same, that means ये कैसा है, like fractions है। अब इनको अरेंज करना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में पहले। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम, छोटे से बड़े की ओर जाते हैं हम। सो फर्स्ट वी राइट स्मॉलर, देन वी मूव टुवर्ड्स ग्रेटर। सो यहाँ पे हमें पता है 1/8 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, 1/8, then 3/8, then 4/8, then 6/8 with the sign. In descending order, first write the greater fraction 6/8, then 4/8, then 1/8, then 3/8, then 1/8. Now here the sign is changed. This is a less than sign, this is a greater than sign. In the next figure, figure B, here is also some fractions are given. Okay, first one is 1/9. Sorry, 8/9. 8 by, this is 8/9, not 1/9. I did mistake in it.
8/9 because 8 squares are shaded, so this is the 8/9. so change it, इसको convert करेंगे हम. Okay, now see, first see, then we have correction. 8/9, then this is a 4/9, this is a 3/9, and this is a 6/9. Arrange in ascending order. So smaller value is 3/9, smallest is 3/9, then 4/9 because denominator is same. तो सीधा न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर में जो छोटा वो सबसे पहले आएगा, तो 3/9, 4/9, 6/9, देन 8/9. सिमिलरली सबसे पहले अब यहाँ पर क्या आएगा, 8/9 आएगा, ये हमारा आएगा 8/9. ओके, 8/9 is greater than 6/9, 4/9 and 3/9. Now in question number C, show 2/6, 4/6, 8/6 and 6/6 on number line. This is your question. इन सबको हमें नंबर लाइन पे शो करना है. So 2/6, 4/6, 8/6 and 6/6 on number line. So first we draw a number line. सबको आ गई अब तो बनाना, नंबर लाइन कैसे बनाना है. ओके, मार्क 0 अप टू 2 बिकॉज वी हैव 8/6. हमारे पास क्या 8/6 है, इसलिए हमें मार्क करना पड़ेगा. तो देखो यहाँ से तो ये समझ में आ गया, डिनोमिनेटर में 6 है तो हमें 0 से लेके 1 को हमें 6 इक्वल पार्ट में ब्रेक करना है. 0 to 1 को हमें 6 इक्वल पार्ट में करना है. देन नेक्स्ट 1 से 2 को भी हमें 6 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा. तो हमने इसको ब्रेक करा. ठीक है, 1 2 3 4 5 6, दिस इज अवर 1. So again 1 2 3 4 5 6, this is our 2. So show 2/6, there is the 2/6, then 4/6, this is a 4/6, then 6/6, 6/6 that means 1, and 8/6. if we fill between them, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो हमें करना तो यही है सिर्फ. ठीक है, ये बीच के हमने छोड़ दिए बिकॉज हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन पूछ ले तो यहाँ पर क्या आएगा 1/6 आएगा, यहाँ पे 3/6 आएगा, 5/6 आएगा, 7/6 and so on like that. Okay, you don't need to write all these. Okay, 1/6, 3/6, 5/6 ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ जो आंसर है हमारा 2/6, 4/6, 6/6 and 8/6 लिखना है बिकॉज हमने समझा है. बट उसने फिर आगे क्या पूछा है, पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन. इसके बीच में हमें एप्रोप्रिएट साइन पुट करना है, तो ये मैंने बना लिया है. अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5/6 एंड 2/6, डिनोमीटर सेम है, डिनोमीटर सेम है तो हम न्यूमरेटर में देखेंगे 5 बड़ा है 2 से, तो ग्रेटर फ्रैक्शन क्या हो गया 5/6, तो साइन लग जाएगा 5/6 की तरफ. देन 3/6 एंड 0/6, 0/6 क्या होता है, 0/6 क्या होता है, 0 ही होता है, तो विच इज ग्रेटर 3/6. नाउ 1/6 एंड 6/6, देखो विच वन इज ग्रेटर, डिनोमीटर सेम है, 6 बड़ा है तो दिस 6/6 इज ग्रेटर. नाउ 5/6, 8/6 एंड 5/6, विच इज ग्रेटर, 8 इज ग्रेटर देन 5, द होल फ्रैक्शन इज ग्रेटर. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेम थिंग फॉलो करना है. ठीक है, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2. This is a like fraction, denominator same, so which is greater, 5 is greater than 3, तो साइन क्या जाएगा, इधर का बन जाएगा बिकॉज 5/6 इज ग्रेटर देन 3/6. अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसके लिए क्या कंसेप्ट था, अगर न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो डिनोमिनेटर में जो छोटी वैल्यू है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो 1/4 कैसा होगा, ग्रेटर होगा. नाउ 4/5 एंड 5/5, यहाँ पर भी 5/5 बड़ा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में 5 बड़ा है. देन डी 3/5 एंड 3/7, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है बट 5 छोटा है, तो 3/5 इज ग्रेटर फ्रैक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेक 5, ये क्वेश्चन छोड़ देना, मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन. तो ये आप अपने से बना सकते हो, जो भी मन करे आपका आप ले लेना, आपकी इच्छा हो तो इस क्वेश्चन को करना, अदरवाइज यू लीव इट. Now question number 4, question number 4 is very interesting question. इसको देखेंगे हम क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में. इस क्वेश्चन नंबर 4 को आप बुक में ही कर लेना, इसको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, डायरेक्ट आप इसको बुक में ही कर ले. सी
क्या है, बुक में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें इस फिगर को देख के इन क्वांटिटीज को फिल करना है, ठीक है। तो पहला 1/6 एंड 1/3, वेयर इज 1/6? 1/6 इज हियर एंड 1/3 इज हियर। अब देखो दोनों को देखो, सिर्फ इतने पोर्शन को देखना, ये बीच वाले पोर्शन को आप मत देखना, इसको छोड़ दो, ठीक है। नाउ सी दिस आवर 1/6, 1/6 हमारा इतना सा है एंड 1/3 हमारा इतना बड़ा है। बताओ कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा ज़्यादा बड़ा है? ऑब्वियस है 1/3 की जो लेंथ है वो ज़्यादा है 1/6 से। तो इसमें जो साइन पुट करेंगे हम 1/3 को ग्रेटर शो कर देंगे। नेक्स्ट 3/4, 3/4 एंड 2/6, 2/6, वेयर इज 2/6? हियर इज द 2/6। नाउ सी, अब इस बीच वाले को आप छोड़ दो, बीच वाले पे ध्यान मत देना, ठीक है। अप टू 3/4, 3/4 तक की लेंथ यहाँ तक है, 3/4 0 से लेकर के यहाँ तक की लेंथ है 3/4। एंड नेक्स्ट इज 2/6, 2/6 की लेंथ ये है हमारे पास। तो ऑब्वियस है 3/4 जो है वो ऑलमोस्ट डबल है 2/6 है। तो विच इज ग्रेटर? 3/6 इज ग्रेटर। नाउ अगेन 2/3, 2/3, दिस इज 2/3 एंड 2/4, 2/3 एंड 2/4, दिस आपको इन दोनों बीच वाले को देखना है। सो 2/3 की लेंथ यहाँ तक है एंड 2/4 की लेंथ यहाँ तक है, तो किसकी लेंथ ज़्यादा है? 2/3 की लेंथ ज़्यादा है, तो अवर फ्रैक्शन इज ग्रेटर 2/3। नेक्स्ट 6/6, 6/6 बोले तो ये कंप्लीट लेंथ हो गई, 0 से लेकर 6/6 यहाँ तक की लेंथ, एंड 3/3 ये भी कंप्लीट लेंथ है। दोनों कैसी लेंथ है देखो, 3/3 ये लेंथ है एंड 6/6 ये लेंथ है, दोनों लेंथ कैसी? बराबर है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन बना देंगे। नाउ 5/6 एंड 5/5, 5/6 ये है हमारे पास, दिस इज 5/6 यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड 5/5 ये इससे एक ब्लॉक ज़्यादा है, थोड़ी सी बड़ी 5/5, बिकॉज ये कंप्लीट लेंथ है और ये कंप्लीट लेंथ नहीं है, तो 5/5 इज ग्रेटर देन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बाय द फिगर, ठीक है। एक बार आप इन सबको देखना, मेजर कंपेयर करके देखना विद द फिगर, यू विल गेट डेफिनेटली क्लियरिफिकेशन अबाउट इट। नाउ इसमें 5 और इस टाइप के प्रॉब्लम्स करना है, तो ये करने की जरूरत नहीं, लीव इट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।